حیدرآباد کے تاریخی قبرستان گنبدان قطب شاہی کا امریکی قونصل جنرل متعینہ ہند کند آئی جسٹر نے دورہ کیا۔ قونصل جنرل نے تزئین نو کیے گئے 2 گنبدوں کا افتتاح کیا، جس کی تزئین نو کی ذمہ داری US قونصلر جنرل حیدرآباد آغا خان فاؤنڈیشن نے کلچر کے تحفظ کے پروگرام کے تحت لی تھی۔ اس موقع پر امریکی قونصل جنرل کینٹ آئی جسٹر نے کہا کہ انڈیا کے کلچرل ہیریٹیج کا تحفظ ضروری ہے۔ انہوں نے گنبدوں کی تزئین پر تلنگانہ حکومت، آغا خان فاؤنڈیشن اور US قونصلر حیدرآباد سے اظہار تشکر کیا۔ We've had 3 Ambassadors Fund grants over the years. We are applying for more, and I'm delighted to be here to mark the completion of this project, which looks so beautiful today. Some of you may have been here when I was last at this site. It's progressed tremendously. So we're to do the topping out of our new consulate compound in Hyderabad. We've been here for 10 years, but we have now a new building that will have many more windows for doing passports and visas, and I think will be a great site for our team, and I'm delighted to be at the ceremony later today. How many windows is the visa, sir? 54. It's going to go to 54, right, which is up from From 15. 15 Yes, 15 to plus again. 54. So that will even further enhance the facilities for granting visas. By the end of 2021 is when we look to be occupying it. So still a little ways away, but we're having the topping out ceremony. تلنگانہ بھر میں کرونا وائرس کے خوف کے درمیان حیدرآباد کے گاندھی اسپتال میں زیر علاج ایک شخص جو کرونا وائرس سے متاثر پایا گیا تھا، اس کے منفی رپورٹس آئی ہیں۔ اس نوجوان کی نئی رپورٹس سامنے آئی ہیں۔ اس کا بخار اور BP نارمل ہے۔ اس کی منفی رپورٹس کے بعد اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز نے راحت کی سانس لی ہے۔ دوبارہ تصدیق کے لیے انہوں نے اس کی رپورٹس پونے کے انسٹیٹیوٹ کو روانہ کیا۔ اگر پونے کے انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اس کی رپورٹس کو منفی قرار دیا جاتا ہے تو اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس کے بعد اس کی صحت پر 2 ہفتوں تک نظر رکھی جائے گی۔ متاثرہ شخص جو سافٹ ویئر انجینئر ہے، حال ہی میں دبئی سے حیدرآباد آیا تھا۔ وہ کرونا وائرس کی علامات کے ساتھ گاندھی اسپتال سے رجوع ہوا تھا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کی رپورٹس کو مثبت پایا تھا۔ بعد ازاں اس کو الگ تھلگ وارڈز میں داخل کر لیا گیا تھا، جہاں علاج کے بعد اس کی صحت بہتر ہو گئی ہے۔ دوسری طرف گاندھی اسپتال میں کرونا وائرس کی علامات کے ساتھ 11 مریض زیر علاج ہیں۔ ان کے نمونے بھی جانچ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وزیر صحت راجندر نے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ کر تھرمو اسکریننگ کی سہولیات کا معائنہ کیا۔ واضح ہے کہ بیرون ممالک سے شمس آباد ایئرپورٹ پہنچنے والے تمام مسافرین کی کرونا وائرس کی جانچ کے لیے اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ راجندر نے ایئرپورٹ کے عہدیداروں اور متعلقہ ٹیم کے ارکان سے بات چیت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روزانہ 5,500 سے زائد مسافرین دیگر ممالک سے شمس آباد ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں۔ کرونا وائرس کو ریاست میں پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام مسافرین کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ موسم گرما کی آمد سے قبل تلنگانہ میں پینے کے پانی کی قلت محسوس کی جا رہی ہے۔ پینے کے پانی کی سپلائی کا مطالبہ کرتے ہوئے مقامی عوام نے رکن اسمبلی کے گھر کے سامنے احتجاج کیا۔ کریم نگر ضلع کے چوپا ڈنڈی میں خواتین نے رکن اسمبلی روی شنکر کے گھر کے باہر خالی گھڑوں کے ساتھ احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی خواتین کا کہنا ہے کہ میونسپل عہدیداروں کی لاپرواہی کے سبب وہ کئی دنوں سے پینے کے پانی سے محروم ہے۔ انتخابات کے موقع پر کئی وعدے کیے جاتے ہیں، علاقے میں صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ احتجاجی خواتین نے مسائل حل نہ ہونے کی صورت میں احتجاج میں شدت لانے کی دھمکی دی ہے۔ مسائل کے حل کا مطالبہ کرتے ہوئے 13 مارچ کو چلو اسمبلی پروگرام منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ چلو اسمبلی کو اساتذہ، ملازمین، وظیفہ یاب ملازمین اور پبلک سیکٹر کے کانٹریکٹ ملازمین کی تائید حاصل ہے، جبکہ پولیس نے چلو اسمبلی پروگرام کو اجازت دینے سے انکار کیا ہے۔ سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار کے طریقہ کار پر ملازمین نے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ حمایت نگر BC بھون میں ملازمین، اساتذہ اور پبلک سیکٹر کے کانٹریکٹ ملازمین کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس دوران مستقبل کے لاحمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں شریک ملازمین نے کہا کہ گزشتہ 5 سالوں سے PRC پر عمل آوری نہیں ہو رہی ہے۔ ملازمین نے 13 مارچ سے قابل بات چیت کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ بصورت دیگر چلو اسمبلی پروگرام منعقد کرنے کا انتباہ دیا۔
కాంట్రాక్ట్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలి. అసలు సమాన పనికి సమాన వేతనం అనే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. ఆ తీర్పును ఎందుకు గౌరవించరు? ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ తీర్పును గౌరవించి సమాన పనికి సమాన వేతనం తప్పకుండా ఇవ్వాల్సిందని డిమాండ్. ఈరోజు సిపిఎస్ ను వెంటనే రద్దు చేయాలి. అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత, కేంద్రాన్ని కాదు. కేంద్రం మీద వేయడం సరైనది కాదు అనేది నేను చెప్తూ, ఏదేమైనా మేము అసెంబ్లీని ముట్టడికి తీరుతాం. ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ పెన్షనర్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ పక్షాన ఈరోజు 13వ తేదీ రోజు చెలో అసెంబ్లీ కార్యాచరణ తీసుకున్నాము. దాదాపు ఈరోజు 50 సంఘాల ఆమోదంతో ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఇందులో కొత్త ఒక్క డిమాండ్ కూడా మేము చేర్చడం లేదు. మే 16, 2018 నాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 13 वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट का दौरा किया। शहर के गंज मार्केट, ओल्ड फिश मार्केट व दीगर इलाकों में पैदल दौरा करते हुए सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। सड़क पर कचरा देखकर हरीश राव ने म्यूनसिपल ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। हरीश राव ने सड़क के किनारे डंपिंग यार्ड न रखने का मशवरा दिया। हरीश राव ने इलाके को साफ सुथरा रखने का म्यूनसिपल कमिश्नर को हुक्म दिया। इसके अलावा उन्होंने सफाई से मुताल्लिक शऊर बेदार करने का ओहदेदारों को हुक्म दिया। तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में एक ऐसा जेल है जहां पर जाने के लिए आपको जुर्म करने की ज़रूरत है और ना ही जेल से बाहर आने के लिए किसी की जमानत की ज़रूरत है। इस जेल के कैदी बनने के बाद आपको कैदियों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, ये बात अच्छी तरह से समझ आएगी। पेश है खास रिपोर्ट। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में दोनों तेलुगु रियासतों एपी तेलंगाना की सबसे कदीम जेल है। इस जेल की इमारत 225 साल पुरानी है। 1796 में इस इमारत की तामीर पहले निजाम के दौरे हुकूमत में हुई थी। उस वक्त इस इमारत में घोड़ों और हाथियों को रखा जाता था। 1879 में निजाम दौरे हुकूमत में इस इमारत को जेल में तब्दील किया गया। मुजाहिदीन आज़ादी और निजाम दौरे हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों को इस जेल में रखा जाता था। साल 2012 में जिले संगारेड्डी के लिए नए जेल की इमारत की तामीर के बाद ये इमारत खाली हो गई थी। महकमे जेल ने इस इमारत को जेल म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला लिया। जेल म्यूजियम में दुनिया भर के कैदियों को दी जाने वाली सजा की तस्वीर के जरिए नुमाइश लगाई गई, जहां पर दुनिया भर के मशहूर मुसव्विरों के 150 से ज्यादा तस्वीर मौजूद हैं। न सिर्फ नुमाइश बल्कि फील ये जेल के नाम से अगर कोई शख्स जेल की जिंदगी से मुताल्लिक मालूमात हासिल करना चाहता है तो उस शख्स को एक दिन के लिए जेल में रहने की सहूलत भी फराहम की जाएगी, जहां पर कैदियों की तरह रखा जाएगा। ये मुल्क की पहली ऐसी जेल है जहां आम लोगों को जेल में रहने और जेल की जिंदगी से मुताल्लिक मालूमात दी जाती है, बल्कि अमली तजुर्बा भी हासिल किया जा सकता है। इस जेल की दुनिया भर में धूम है। इंडिया के अलावा बैरून ममालिक के सयाह इस जेल में जिंदगी गुजारने के लिए बेताब हैं। There's a jail museum in Malaysia also, but we just can go and visit, not overnight stay. Experience the jail here, and also because this is my first time to India, so I also travel a little bit around. I know this through homepage internet, and I would like to experience the Heritage Jail Museum here, so I came here to have an experience. अगर आप भी बगैर किसी जुर्म के सजा काटना चाहते हैं और कैदियों की जिंदगी से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं तो सिर्फ 500 रुपए फीस अदा करके 24 घंटों के लिए अपनी मर्जी से कैदी बन सकते हैं, जहां पर आपको कैदियों का ड्रेस और ग़िज़ा फराहम की जाएगी। साथ ही कैदियों की तरह काम भी लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद कोर्ट में इंटरनेशनल वुमेन्स डे प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान कोर्ट हॉल से रैली का आगाज हुआ, जिसमें अदालत का अमला वुकला ने शिरकत की। जूनियर सिविल जज श्रीदेवी ने रैली को झंडी दिखाई। इस मौके पर जूनियर सिविल जज श्रीदेवी ने कहा कि जिस दिन खवातीन तमाम शोबेजात में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे, उसी दिन खवातीन का हकीकी दिन होगा। इस मौके पर बार एसोसिएशन के सदर, जूनियर और सीनियर जजेस व दीगर भी मौजूद थे। गाड़ियों की चोरी के इल्जाम में पंजागुट्टा पुलिस ने 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। वेस्ट जोन डीसीपी ने बताया कि पेपर बॉय के तौर पर काम करते हुए
अपार्टमेंट से गाड़ियों को चोरी करना और पार्टी करना इन दोनों का मामूल था। वेस्ट जोन डीसीपी ने 14 बाइक्स को चोरी के इल्जाम में 2 नौजवानों को मीडिया के रूबरू पेश किया। उन्होंने कहा कि चोरी की गाड़ियों को कम कीमत पर फरोख्त किया जा रहा था। 10 गाड़ियों को बरामद किया गया है। मजीद गाड़ियों की तलाश जारी है। पुलिस ने कम कीमत पर बाइक खरीदने वाले 5 अफराद के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। टू व्हीलर्स ని రికవర్ చేయడం జరిగింది। ఇది దీనికి సంబంధించి ఇద్దరు అఫెండర్స్ దుబ్బకుంట శేషయ్య, రాయిశెట్టి గోవర్ధన్ వీళ్ళిద్దరూ ఈ 14 బండ్లు ఏవైతే రికవర్ చేయబడ్డాయో వీళ్ళు దీనికి దొంగతనానికి వీళ్ళిద్దరూ పాల్పడ్డారు। ఈ 14 వెహికల్స్ కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది। వీళ్ళిద్దరూ ఈ పంజగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించిన ఏరియాలో ఈ 14 వెహికల్స్ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్సెస్లో అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని రెసిడెన్సెస్ దగ్గర వీళ్ళు ఈ 14 వెహికల్స్ కూడా దొంగతనం చేయడం జరిగింది। దీంట్లో ఆల్రెడీ 10 వెహికల్స్ రికవర్ చేయడం జరిగింది। ఇంకొక 4 వెహికల్స్ రికవర్ చేయాల్సింది ఉంది। వీళ్ళిద్దరిని కూడా ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కి పంపడం జరుగుతుంది। में CAA, NRC, NPR के खिलाफ कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलुगु देशम के अलावा कांग्रेस, बाज़ु जमातों और मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। जलसे आम से खिताब के दौरान केरल के वज़ीर आला P. विजयन ने कहा कि CAA, NRC और NPR के खिलाफ मुल्क में पहली मरतबा केरल हुकूमत ने आवाज़ उठाई है। उन्होंने रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत से भी NPR पर पाबंदी आयद करने की अपील की। P. विजयन ने कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत शहरियों की मजहबी आज़ादी को ख़त्म करना चाहती है। शहरी तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। पी विजयन ने जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेकुलर पार्टियों से एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील की। The differentiation introduced through the CAA on the basis of religion and nationality is unconstitutional. In the Keshavananda Bharati case, the Supreme Court's Constitution bench had decreed that the Parliament has no authority to introduce laws in violation to the basic structure of the Constitution. A country becomes a religious state when religion becomes a determinant in granting citizenship. The Kerala Legislative Assembly unanimously passed a resolution against the CAA. And meetings are happening all across the state, creating awareness on the dangers associated with the CAA, NPR and NRC. Together, we will overcome the challenges. Make no mistake, we are going to win in this struggle. విద్యార్థులు ఎగబడతా ఉన్నారు, పోరాటం సాగిస్తా ఉన్నారు, యువకులు ఎగబడతా ఉన్నారు. ఇందాక ప్రసాద్ గారు చెప్తా ఉన్నారు, ఇది కేవలం ముస్లిం సభాగొద్దని చెప్పి కాదు. ఈ దేశంలో ప్రతి యూత్ ముస్లిం సంబంధం లేకుండా మొత్తం పాల్గొంటా ఉన్నారు. దేశంలో ఆందోళన వస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు దాదాపు 6 రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు తీర్మానం చేస్తా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నాం మీరు సాధించగలరాని, సాధించలేరు. అక్కడ చేయగలిగింది ఏంటంటే ఈ NPR ద్వారా పరిశోధన ద్వారా కన్ఫ్యూజ్ చేసి గందరగోళం చేసి ఈ మత విషయాలను రెచ్చగొట్టి చివరికి ఇళ్ళు ఆడిపోతారంటే ఇల్లు ఆడకుండా చుట్టముట్టించుకునేటువంటి పైశాచికత్వానికి పోయే పద్ధతుల్లో ఈ దేశంలో అల్లకొల్లం జరగాలా, దానిలో ఓట్లు మాకు హిందూ ఓట్లు కావాలా, దాని కూడా చేసే కుటుంబ కార్యం కాదు. పార్లమెంటులో ఈ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళ అనేక మంది ఆదివాసీల, ముస్లిం మైనారిటీలు, క్రిస్టియన్ మైనారిటీ, వివిధ మైనారిటీ మతస్థుల, దళితుల గొంతు కోయడానికి ఒక చట్టం సిద్ధం చేస్తే, ఒక ఉత్తర్వు తెస్తా ఉంటే, ఒక ఫర్మానా జారీ చేయబోతా ఉంటే, ఒక కత్తి నూరుతా ఉంటే దానికి ఓట్లు వేసి వచ్చిన వైసీపీ నాయకులారా ఏ మొహం పెట్టుకొని మా ముందుకు వచ్చారని రోజున మా గొంతున కాలే రక్తాన్ని చూడడానికి వచ్చారా అని అడుగుతా ఉన్నాం. ఈ రోజున ఏదైతే ఈ CAA ఉందో, NRC ఉందో, NPR ఉందో, ఏదైతే ఇందాక మన కేరళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, అదేవిధంగా కేరళ ఎట్లా తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి మేము CAAని మా రాష్ట్రంలో చెయ్యం, NRCని మా రాష్ట్రంలో చెయ్యం, NPR మా రాష్ట్రంలో చేయమని చెప్పి ఆయన చేశారో, అదేవిధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, మీరు అసెంబ్లీలో వెంటనే తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టండి.
దానికి నా బాధ్యతగా తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి మా ఎమ్మెల్యేలు కూడా దాన్ని సపోర్ట్ చేసేటువంటి బాధ్యత తీర్మానం నేను తీసుకుంటానని కూడా నేను इत्तेहाद बराए मुखालिफ एनआरसी एनपीआर जेसी आंध्र प्रदेश ने लोकल बॉडी इलेक्शन में वाईएसआरसीपी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला किया है। जेसी लीडरों ने कहा कि रियासत में एनआरसी एनपीआर के खिलाफ 3 महीने से एहतजाज जारी है, लेकिन हुकूमत ने इस मामले पर कुछ ठोस काम नहीं किया। वज़ीर आला ने सिर्फ एक ट्वीट करके एनपीआर न करने का ऐलान किया। हुकूमत के इक़दाम पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए जेसी ने आने वाले इंतखाबात में हुक्मरान जमात वाईएसआरसीपी और तेलुगुदेशम के खिलाफ अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। आने वाले लोकल बॉडी जो इलेक्शन होंगे कि हम जो है अपने कैंडिडेट्स को लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर ठहराएंगे। इसकी वजह यह है कि गुज़िस्ता 3 महीनों से ये ड्रैकोनियन लॉज के खिलाफ जो मुहिम चल रही थी, यहाँ की पूरी सियासी जमातें जो लीडिंग में है और अपोजिशन के अंदर भी है, वो बिल्कुल चुड़ी छिप साधी हुई थी। तो हमने फैसला किया कि हम इनको जो है वोट के ज़रिए से जवाब देंगे और जो इलेक्शन का जो सिलसिला है उसको कैसा फेस करना है, एक ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर रखा गया है। सियासत के अंदर नौजवानों का अहम रोल अदा हो, इस पर है ना गौर किया जा रहा है कि ये देखा जा रहा है कि कहाँ पर इन नौजवान कामयाब हो सकते हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर मिल्लत के बुजुर्ग तमाम हजरात है ना इस पर गौर की जा रही है। इसी सिलसिले में आज की आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जगन हुकूमत को झटका दिया है। सरकारी इमारतों को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का रंग चढ़ाने पर अदालत ने बरहमी जाहिर की। अंदरून 10 यौम पंचायत राज व दीगर सरकारी दफातर को नया रंग चढ़ाने की हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में 10 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने के चीफ सेक्रेटरी को अहकामात जारी किए गए। गुंटूर जिले के वेंकटेश्वर राम नामी शख्स की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। करनूल जिला इंचार्ज वजीर अनिल कुमार यादव ने आज जिला करनूल का दौरा किया। उन्होंने आने वाले पंचायत और बल्दी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत से कामयाबी का दावा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में रियासत तरक्की के रास्ते पर है। 9 महीने की कारकर्दगी से समाज का हर तबका मुतमईन है। जगन हुकूमत ने आम इंतखाबात में किए गए वादे को पूरा किया है। उन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। जिला करनूल के अदूनी मंडल में आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमपीटीसी उम्मीदवार सुधाकर रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। सुधाकर रेड्डी ने अपने हामियों के साथ अदूनी मंडल के दफ्तर में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमपीटीसी और बल्दी इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्यसभा की 4 नशिस्तों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को क़तईयत दे दी है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 4 नशिस्तों के लिए इंतखाबात का एलामिया जारी हो चुका है। चारों नशिस्तों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। पार्टी ने 2 रियासती वज़रा मोपी देवी वेंकट रमना और पी सुभाष चंद्र बोस और 2 सनतकारों राम की इंडस्ट्रीज के सरबरा अयोध्या रामी रेड्डी के अलावा सनतकार पी नित्या को राज्यसभा के लिए पार्टी उम्मीदवार बनाया है। वाईएसआर कांग्रेस के अक़लियती लीडरों ने हाईकमान से दरख्वास्त की थी कि 4 नशिस्तों में एक नशिस्त अक़लियती तबके के लिए अलॉट की जाए, लेकिन जगनमोहन रेड्डी ने इस मुतालबे पर तवज्जो नहीं दी। काउंसिल की बर्खास्तगी से हाल ही में काउंसिल की रुकनियत हासिल करने वाले शेख मोहम्मद इकबाल ओहदे से महरूम हो जाएंगे। उनके अलावा काउंसिल के सदर नशीन अहमद शरीफ का ओहदा भी खत्म हो जाएगा। काउंसिल की बर्खास्तगी के रियासती हुकूमत के फैसले को मरकज की मंजूरी का इंतजार है। राज्यसभा के लिए पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने पर वाईएसआरसीपी के उम्मीदवारों ने पार्टी सदर और वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। मोपी देवी वेंकट रमना अयोध्या रामी रेड्डी और पी नित्या ने जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने राज्यसभा का टिकट देने पर इजहार तशक्कुर किया और रियासत के मसाइल को कौमी सतह पर उठाने का अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने वज़ीर आला को तहनीत भी पेश की। कोरोना वायरस से मुतासर मरीज के इलाज के लिए मरकजी महकमे सेहत की जानिब से ट्रेनिंग दी जा रही है। आंध्र प्रदेश के सीनियर डॉक्टर्स को 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग की तकमील के बाद तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स ने विजयवाड़ा के एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी में शऊर बेदारी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मकामी डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान कोरोना के मरीजों का किस तरह से इलाज किया जाए, इस पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया।
अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी ड्रेस का इस्तेमाल करने, मास्क लगाने, मरीज़ के नमूने हासिल करने के दौरान किस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाएँ, इस पर बातचीत हुई। विजयवाड़ा में सेंट्रल कोरोना कंट्रोल रूम्स कायम करने का भी फैसला लिया गया। कोरोना वायरस से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में सनसनी मची हुई है। आंध्र प्रदेश के शहर अनंतपुर में कोरोना वायरस से मुताल्लिक शऊर बेदारी रैली निकाली गई। इस दौरान लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक आवाम को वाकिफ करवाया गया। अनंतपुर के आर्ट्स कॉलेज से रैली का आगाज़ हुआ। क्लॉक टावर तक रैली का एहतमाम किया गया था। रैली में स्कूली तलबा के अलावा एनसीसी तलबा और दीगर ने शिरकत की। करनूल के एक फंक्शन हॉल में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में साबिक वजीर कोटला सूर्या प्रकाश रेड्डी, जिला सदर तेलुगु देशम पार्टी सोमी शेट्टी, टीजी भरत के ई प्रभाकर और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में एमपीटीसी, जेडपीटीसी और बल्दी इंतखाबात पर कई अहम फैसले लिए गए। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने कहा कि वो वाईएसआर कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए तैयार रहें। और से हज़रत सैयद शहाबुद्दीन अहमद कादरी अलमारूफ सैयद शाह अहमद पाशा कादरी के मौके पर तरहीन नातिया मुशायरे का इनकाद अमल में ला गया। मिसरा तरह अमन का पैकर बनकर आना सबके बस की बात नहीं दिया गया था। ये मुशायरा अदुनी में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत हुसैन साहब ने की, जिसके मेहमान खुसूसी के तौर पर वहीद वाजिद रायचूर, वसीउल्लाह बख्तियारी रायचूटी, नूर आफाकी शरीक रहे। मुशायरे में मकामी शोरा मखदूम यसरा, मुश्ताक निज़ामी, सलीम असलम निज़ामी, सुबहान शाहिद, यूसुफ शमशास, सादात हुसैनी, हुसैन काजिम, इकबाल अंजुम, सैयद आरिफ नौमानी के अलावा बैरून रियासत के शोरा ने भी शिरकत की। रब तक जाना सबके बस की बात नहीं और खुदा से मिलकर आना सबके अर्शे वो अल्लाह पर ही जाना सबके बस की बात नहीं, रब से बातें करके आना सबके बस की बात नहीं, पिलाना सबके बस की बात नहीं, प्यासे रहकर सबको पिलाना सबके बस की बात नहीं, औकात बढ़ाना सबके बस की बात नहीं, मौला की पहचान कराना सबके। करनूल सीपीएम पार्टी ओल्ड सिटी ब्रांच की जानिब से करनूल के एमआरओ पर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से उन्हें घरों की तामीर के लिए फौरी पट्टा जारी करने का मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। देखिए जाको के पैखान डोडी बैठकाना, वो झाड़ा में जाको बैठकाना पड़ती तकलीफ है। इसकी जिंदगी में ऐसी तकलीफ रखो भाई, बहुत तकलीफ है। हमारा को 20 साल या ऐसे झाड़ा पाली हमें झाड़ा में जाको बैठका दी है सारा, हमें ऐसा है तकलीफ। हमारा लक्ष्मी गाड़ी के कोटा में 20 साल या बहुत तकलीफ पड़ती तक बाप नाल नहीं, रोड नहीं, नाली नहीं, क्या आ नहीं सकता, ऐसा तकलीफ है सर। हमारा कैसा तकलीफ है, हम लोग सब हमारा सहूलत करना देखो भाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।